Hello students. In this lecture we are going to discuss your genetics point, that is guidelines for gene manipulation. This is your credit which contains the 2 points, that is first is history of recombinant DNA technology, its potential uses and biohazards, and second point is safety guidelines for recombinant DNA technology laboratory setup. Okay, so in this lecture we are going to discuss first point, that is history of recombinant DNA technology, potential uses and biohazards. So guidelines for gene manipulation, this chapter is your all over about guidelines. Okay, as the name indicates, this is all about the guidelines which is taken up during the genetic engineering process, that is also known as gene manipulation, plus the guidelines for laboratory setup of recombinant DNA technology. Okay, so these are the two guidelines that we want to study in this chapter for genetic engineering and for laboratory setup of recombinant DNA technology. So let's focus first, what is gene manipulation. Gene manipulation is also known as genetic engineering. Now you are aware of genetic engineering, तो आपको ये नहीं पता होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही जीन मैनिपुलेशन बोलते हैं. ओके, सो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ recombination where the gene of one organism is combined with the gene of second organism to produce a hybrid and new variety. ओके, तो हमने यहाँ क्या किया है? जेनेटिक जीन का रिकॉम्बिनेशन किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की है. ओके, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर हमने जीन मैनिपुलेट किया है. ओके, जीन मैनिपुलेट करना मतलब जीन हमने इंट्रोड्यूस किया है, उस पर काम किया है, दैट इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, सो जीन मैनिपुलेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ जीन्स विद इन द ऑर्गेनिज्म. एज आई टोल्ड अर्लियर कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन इंट्रोड्यूस करना और एक न्यू वैरायटी प्रोड्यूस करना, जिसे आप जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं. अगर वो ऑर्गेनिज्म में है तो इट इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. इफ इट इज इन प्लांट देन इट इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स. ओके, सो जीएमओ ये बहुत आजकल बहुत वाइड इसका यूज है, बहुत वाइड एप्लीकेशन है. जीएमओ एक अलग आप उसे बोल सकते हैं एक अलग उस पर एक अलग ये भी बन सकता है, व्हाट वी कैन से, एक अलग टॉपिक है, एक अलग लेक्चर भी बन सकता है जीएमओ पर. ओके, सो जीएमओ इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेक्निक नोन एज जीन मैनिपुलेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग. जीन्स क्या है? तो जीन्स आर द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए और पीसेस ऑफ डीएनए that carries genetic information which determines the characteristic of an individual. Okay, so this is the basic. Next, as genetic engineering and gene manipulation are related to the recombinant DNA technology. So what is recombinant DNA? It is production of unique DNA molecule by joining together two or more DNA fragments. ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला, सपोज वी हैव टेकन जीन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ए, सेकेंड जीन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म बी बाय द सर्टन एंजाइम्स और कुछ एक्टिविटी हमने उस पर प्रोसेसिंग की है, एंड देन वी हैव प्रोड्यूस्ड न्यू वैरायटी. ओके, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड. हमने जो वैरायटी बनाई होगी, इट इज नोन एज द रिकॉम्बिनेंट. ओके, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक जीन दूसरे जीन से रिकम्बाइन कर रहे हैं, एक डीएनए दूसरे डीएनए से रिकम्बाइन कर रहे हैं, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. Then DNA fragments are usually derived from different biological sources. If you see the history of recombinant DNA technology, then it is a really very यूजफुल टूल इन द मॉलिकुलर बायोलॉजी. ठीक है, ये बहुत यूजफुल टूल है मॉलिकुलर बायोलॉजी में, इससे बहुत सी चीज़ें आसान हुई हैं. वी आर गोइंग टू सी फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ दिस RDNA टेक्नोलॉजी. इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम्ड और डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट नेम्ड बॉयर एंड कोहेन इन द ईयर 1973.
So these scientists have changed the pioneer of this science and technology field and introduced a new tool in the molecular biology. So development of molecular biology, early research or prokaryotic genetics and the development of molecular technique has led to a new discipline called molecular biology. As I told, इस लाइन में सिर्फ आपको इतना important पॉइंट याद रखना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ओके, so why it is important tool that we are going to see in the applications or we can say potential uses. तो देखिए, कोई भी चीज़ जब आती है तो उसके यूज़ भी होते हैं, उसके एप्लीकेशंस भी होते हैं, एट द सेम टाइम उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं. ओके, सो इन दिस टर्म, इन मॉलिक्यूलर लेवल टर्म उसे कहा जाता है बायो हजार्ड्स, बायो लिविंग हजार्ड्स. ओके, सो दैट इज द बायो हजार्ड्स. तो पहले हम पोटेंशियल यूज देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए से दिस टेक्नोलॉजी ये कहाँ कहाँ यूज की जाती है. तो इट हैज़ द वाइड एक्सप्लॉयटेशन. ओके, लाइक क्रॉप एग्रीकल्चर है, फार्मास्यूटिक्स है, जीन थेरेपी है, वैक्सीन डिज़ाइन है, बायोरेमिडेशन है. तो इन सब चीज़ों में हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. And the most classical example of this is GMO, that is genetically modified organism. Okay, तो इसके अलावा जो पोटेंशियल ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी है इन वेरियस फील्ड्स, तो पहला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम करते हैं जीन मैपिंग. ठीक है, जीन मैपिंग इज ऑल्सो डिफरेंट कंसेप्ट. सो जीन मैपिंग में भी इसका आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. दैन जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत से डिसऑर्डर्स होते हैं, हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, दैट इज़ हेरिडिटरी. तो उसके डिसऑर्डर्स होते हैं, दैट इज़ नोन एज द जेनेटिक डिसऑर्डर. ओके, उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का ये बहुत वाइड एप्लीकेशन है, दैट इज इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर द एंटीबॉडीज विच बाइंड ओनली वन सब्सटेंस. ओके, एक ही सब्सटेंस को बाइंड होता है एंटीजन, एक ही एंटीजन, इट इज़ वेरी पर्टिकुलर, सो इट कैन बाइंड ओनली, इपिटोप ऑफ दैट एंटीजन कैन बाइंड ओनली टू दैट antibody. Okay, so that is the monoclonal antibody. Next, it is used in the gene therapy. ओके, तो जीन थेरेपी में भी इसका यूज़ होता है. जीन थेरेपी, इट इज़ द जीन मतलब फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट, सो इट यूजेस जीन्स टू ट्रीट डिसीजेस. ओके, दैट इज नोन एज द जीन थेरेपी. सो बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो अब ये देखिए, जैसे मैं आपको अलग अलग फील्ड्स बता रही हूँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जीन मैपिंग है, तो उसकी एक अलग, इसका ये साइमल्टेनियसली ये स्कोप भी दिखा रहा है. जीन मैपिंग एक अलग वास्ट फील्ड है. जेनेटिक डिसऑर्डर, उसमें भी काफ़ी रिसर्च प्रोग्राम्स है, तो दैट इज़ अनदर फील्ड. देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर देयर, जीन थेरेपी इज देयर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जो अलग फॉरेंसिक फील्ड आती है. डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विच इज़ यूज टू डिटेक्ट इन द क्रिमिनल केसेस. ओके, डीएनए मैच किया जाता है क्रिमिनल का, एंड दैट means DNA is been matched of criminal. So to detect the criminal, this technique is widely used, DNA fingerprinting, which comes under recombinant DNA technology. Okay, तो ये सब applications है RDNA technology के. Then again crop improvement is there definitely in agriculture. तो in vaccine production में use किया जाता है. So these are different applications or potential use. Potential means strong use of recombinant DNA technology. Okay, so that is the potential use. ये term use की गई है, सिर्फ applications आप नहीं कहेंगे, but strong application या फिर strong use हम इसे बोल सकते हैं. ठीक है, so it is also used in the AIDS test. Next, it is used for the diagnosis of molecular disease like sickle cell anemia. Sickle cell anemia क्या होता है? It is the disease of we can say infection of RBC. In that RBC का shape change हो जाता है, and then RBC
starts to break down. Okay, so that is known as the sickle cell anemia, which is disorder of RBC. Next is thalassemia. Thalassemia, it is the blood disorder which is characterized by less oxygen carrying protein. Okay, so that is known as the thalassemia. तो ये सब चीज़ें हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी से डायग्नोस कर सकते हैं, या फिर ये डिसीज़ हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी से डायग्नोस कर सकते हैं, विच इज़ वेरी एडवांस्ड टेक्निक. ओके, नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड इन द पैरेंटल डायग्नोसिस. ओके, अगर इसके अलावा हम एप्लीकेशन देखें तो जीन थेरेपी, जैसे मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर इज देयर डेफिनेटली टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ फूड एंड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कुछ नया ट्राई किया जाए. सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वी कैन यूज दिस टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑल्सो टू बाय द यूज ऑफ एंजाइम्स. ओके, to produce different products like cheese, detergents, sugars, protein product, or food additives, or the products which are rich in the nutrition or rich in the protein. So हम combine करके gene रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दैट इज़ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. देखिए, जब हम बात करते हैं हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करने की, ओके, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है, उसके डिसएडवांटेजेस भी है. सो इट्स नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस, बट वी आर गोइंग टू टॉक इवन अबाउट सम बायोहजार्ड्स. ओके, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक मेडिसिन, विच इज़ वेरी वास्ट फील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो फॉरेंसिक स्टडी में हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जस्ट टू डिटेक्ट इन द क्रिमिनल केसेस बाय द पैटर्न. ओके, फिंगर पैटर्न. सो दैट इज द forensic medicine. Then transgenesis is there. Okay, so these are the wide applications of recombinant DNA technology. अगर हम इसके hazards देखें, definition of hazard, let's understand what is hazard. A hazard is the presence of an inherent characteristic that threatens human health. Just I told you that it is the hazard का मतलब ही होता है कि that thing is going to harm. Okay, that thing is going to harm particular community or environment, उसको हम बोलते हैं hazard. Then what is biohazard? It is a hazard that originates from the living organism. ठीक है, तो ये एनिमल हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, या फिर कोई वी कैन से मटेरियल दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनिमल या फिर प्लांट्स. ओके, सो दैट आर दी बायोहजार्ड्स, जिसका हार्मफुल इफेक्ट होता है टू द सोसाइटी, टू द एनवायरमेंट, टू द कम्युनिटी. दैट इज दी बायोहजार्ड्स. सो क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के? तो इट इफेक्ट्स द नेचुरल इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. डेफिनेटली व्हेन वी टेक हाइब्रिड फूड, कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में, कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में इट्स गोइंग टू, आई नॉट से इट्स गोइंग टू हार्म द बॉडी, बट इट कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, और इट कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. बूस्ट करने के बजाय ये कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल अमाउंट में सप्रेस कर सकती है. ओके, तो जब आप नेचुरल ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक होता है, और हाइब्रिड ये हाइब्रिड होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में क्यों ना हो अफेक्ट करती है. ठीक है, सो दैट इज द इफेक्ट ऑन द इम्यून सिस्टम, और इट कैन डिस्ट्रॉय नेचुरल इकोसिस्टम दैट रिलाइज ऑन ऑर्गेनिक साइकिल. एज आई टोल्ड कि ये नेचुरल इकोसिस्टम को भी डेफिनेटली इट्स गोइंग टू डिस्टर्ब, बिकॉज nowadays people are using hybrid varieties. ओके, इन एग्रीकल्चर ऑल्सो जो हम खाते हैं, नेसेसरी नहीं कि इट्स नेचुरल. रूरल साइड में नेचुरल खाया जा सकता है, लेकिन अर्बन साइड में पीपल कंप्लीटली रिलाई ऑन दी हाइब्रिड वैरायटीज. दे डोंट नो दैट कहाँ से ये प्रोडक्ट आया है, कहाँ से इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, कितने अमाउंट में ये हाइब्रिड है. सो ये कहीं ना कहीं नॉर्मल इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब कर रही है, नॉर्मल लाइफ साइकिल भी इससे डिस्टर्ब हो रहा है. ठीक है, सो it may cause it may lead to biological we can say, or this
इट में अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो, इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है. देन मेजर इंटरनेशनल कंसर्न लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स सच एज botulism and anthrax to target humans with specific genotype. Yes, it may. Means what? Abhi Clostridium botulinum, this is one organism, and Bacillus anthracis, this is another organism. तो ये दोनों organisms, these are the spore, Bacillus anthracis, it is the spore producing organism. तो इनके spores यूज किए जा सकते हैं एज अ बायोलॉजिकल वारफेयर, एज अ बायोलॉजिकल टूल. ओके, फॉर द टेररिस्ट. जैसे टेररिज्म होता है, ओके, हम सिर्फ टेररिज्म यूज करते, दैट इज अटैक. बट इन सम केसेस समवेयर बायो टेररिज्म, बायोलॉजिकल वारफेयर भी यूज किया जाता है. तो बायोलॉजिकल वारफेयर में ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं जिनकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो. तो दिस ऑर्गेनिज्म they act as the biological warfare in the terrorist attack known as the biological warfare, या फिर warfare tool हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है. तो साइंटिस्ट कुछ ऐसे, आई नॉट से साइंटिस्ट, लेकिन टेररिस्ट कुछ ऐसे होते हैं कि वो इनका यूज करते हैं एज अ वेपन टू डिस्टर्ब और टू डिस्ट्रॉय द normal human life or to destroy the normal routine of the human life. They use such things as a biological weapon. Okay, तो recombinant DNA टेक्नोलॉजी से वो जीन रिकम्बाइन करेंगे और एक हार्मफुल स्पेशीज स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वो तैयार कर सकते हैं, एंड दे कैन यूज इट एज अ वेपन टू डिस्टर्ब द कम्युनिटी और टू डिस्टर्ब द पीपल. ओके, सो दैट इज, तो इस टेक्निक के वजह से it may affect the normal routine of the society. Okay, so that are the disadvantage of recombinant DNA technology. तो ये सब है guidelines for gene manipulation का first point, that is history of recombinant DNA technology and potential uses and its biohazards. अगले वीडियो में हम लास्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर recombinant DNA technology and laboratory setup. Okay, thank you.